Jai Hind. Today, we cadets of 19 UP Girls Battalion, Navya Kanya Mahavidyalaya, Lucknow, are here to spread awareness about single-use plastic. But before we begin, do you know what is plastic and what does the term single-use plastic mean? Well, in 1862, Alexander Parker introduced the world's first ever man-made plastic in London International Exhibition. It was known as Parkinson at that time and was discovered while developing a substitute for waterproofing. The word plastic means pliable and easily shaped. Did you know the earth contains 9 billion tons of plastic, which is equivalent to 4 Mount Everest worth of waste and only 9% recycled? One of the most monumental problems of all time is single-use plastic. Do you know what it means? Well, it's quite simple to explain. Plastic packaging, which cannot be recycled further, is known as single-use plastic. India's single-use plastic ban came into force from 2022. It covers the export and import and manufacturing of single-use plastic items. And hence, it is doubtless that it is a fantastic initiative by India. It positively impacts the toxicity of chemicals and hence further saves the life of human and environment. Now let's have a closer look on this topic. Now we talk about why plastic came into use. It was in 1862 when Alexander Parks introduced the world's first ever plastic at the London International Exhibition. Parksine, as it was called, was marketed as an alternative to ivory and horns that Parks discovered while trying to develop a synthetic substitute for shellac for waterproofing. Though the product was not a commercial success, Parksine represented an important first step in the development of plastic. The material didn't start to truly show its potential value and diversity of applications until John Wesley Hath in Albany, New York, discovered a way to manufacture an improved version of Parksine, most commonly known as cellulose. Although mostly for economic and practical reasons, plastic, which is currently overwhelming us, was originally created as a solution to maintain the availability of natural resources on Earth. 1970 के दशक में प्लास्टिक उपयोग औद्योगिक तथा घरेलू क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से बढ़ा। सस्ता, हल्का, ताप विद्युत, कंपन शोर प्रतिरोधी तथा कम जगह घेरने वाला पदार्थ होने के कारण औद्योगिक कार्यों में धातुओं की जगह इसने ले ली। साथ ही वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, कृषि उपकरण प्रतिनिधित्व मिला। अपनी विविध विशेषताओं के कारण प्लास्टिक आधुनिक युग का अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ बन गया। टिकाऊपन, मनभावन रंगों से उपलब्धता और विविध आकारों प्रकारों से मिलने के कारण प्लास्टिक प्रयोग का जीवन हर क्षेत्र में हो रहा है। बाजार में खरीदारी के लिए रंग बिरंगे कैरी बैग से लेकर रसोई के बर्तन तथा कृषि के उपकरण, परिवहन, वाहन, जल वितरण, भवन, रक्षा के उपकरण आदि इन क्षेत्रों में प्लास्टिक का बोलबाला है। यही नहीं, वैज्ञानिक ने मनुष्य का जो कृत्रिम हृदय बनाया है वह भी प्लास्टिक का ही बना हुआ है। आधुनिक युग प्लास्टिक में मानव शत्रु की तरह उभर कर आ रहा है। समाज में फैले आतंकवाद को तो रोका जा सकता है, परंतु प्लास्टिक का उपयोग रोकना अत्यंत ही कठिन है। गृह उपयोगी वस्तुओं से लेकर कृषि, चिकित्सा, मनोरंजन, शिक्षा, विज्ञान, सेना, अंतरिक्ष कार्यक्रमों का उपयोग भरपूर मात्रा से किया जा रहा है। आपने अपने घरों में या फिर घरों के आसपास ये खाली बॉटल्स और पॉलीथीन तो देखी होगी। तो आइए आज मैं आपको इन सब चीजों का यूज बताती हूँ। जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट से काफी चीजें खरीदते हैं। सब्जियां हो गए, फूल हो गए, फल हो गए। उन सब चीजों को रखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पॉलीथीन्स का।
जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में काफ़ी शॉपिंग करते हैं और उन शॉपिंग के सामान को रखने के लिए हम लोग पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक वाटर प्रूफ होती है, इसका यूज़ हम लोग बारिश में भी करते हैं रेनकोट के रूप में। और अगर हम लोग का फ़ोन वगैरह भीग रहा होता है तो हम लोग ये पॉलीथीन में चीज़ें रख देते हैं ताकि हमारे फ़ोन को कुछ नुकसान ना हो। आप प्लास्टिक का यूज करके ये फैंस भी बना सकते हैं। सो हम लोगों ने देखा कि प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस हैं, तो आपके आसपास जो भी प्लास्टिक की चीजें पड़ी हों उनको वेस्ट मत करें, बल्कि उनको हम लोग यूज में ले लें। Yes, I know. When I said that plastic had advantages, you must be thinking, what? How come plastic had advantages? It is very bad for our health and very bad for our environment too. It should be banned straight away. But give me some time. I'll explain few points that will make you agree that plastic is useful too. Plastic can be molded easily, means it can be given various shapes like you all can see around. You can see a pen. This sketch pen, this is made up of plastic. This pen, this is made up of plastic. Your mobile phone, that is made up of plastic. Your laptop, your computers you are working in, everything is made up of plastic. Plastic is one of the cheapest material. Let me give you an example. You receive milk at your doorstep every day, and you can see that it is in a plastic packet, right? Now you are asking me to put it in the paper Tetra Pak. Now what will happen? The price of milk will increase and it will become costly. Now the poor man with the less money can afford it? No, cannot afford it. Plastic is lightweight and it does not corrode easily. Therefore, we did not need to replace it again and again like machinery products, sewage pipelines, etc. So you see, plastic has many uses. Now the next use of plastic is, plastic are used to make bicycle helmets, child safety seats and airbags in automobiles. They are in cell phones and other electronic equipment that make our modern life easy. Plastic enables sustainable, durable, long-lasting design and construction in homes, building and infrastructures like bridges. Plastic packages helps to protect and preserve food for a long duration of time while reducing weight in transportation as it is lightweight also. Plastic can also be used in road constructions that have shown hope in terms of using plastic waste in road construction, that is plastic roads. So first, please remember that do not throw plastic here and there around you. Put it in a trash so that it can be recycled, and wherever possible, go home, wash it so that you can reuse it. So, you see, we do not have to ban plastic completely, but make sure that you use it wisely. Types of plastic. There are two types of plastic, single use and multiple use. Single use plastics or disposable plastics are those which are used only once before they are thrown away or recycled. These can be the boxes in which you get the food, soap packaging, food packaging, plastic bottles and water bottles. Some facts related to single-use plastic. The first one is millions of tons of single-use plastic end up in the ocean. An astonishing 32% of the 78 million tons of plastic packaging produced make its way to the ocean every year. That makes a huge amount of plastic going into the ocean every year. That's the same as one dump truck of plastic dumping right into the ocean every minute. Second, single-use plastic accounts for half of all plastic thrown away. Throwaway packaging accounts
for more than half of plastic thrown away and more than 42% of non-fiber plastic produced every year. Worldwide, 500 billion disposable cups are used every year. 25 billion styrofoam cups are thrown away every year in India only. Styrofoam cannot be fully recycled, which means most of it will end up in the landfill and will be consumed by us through contamination. And what's shocking is that cup you will throw today will exist even after 500 years. So isn't that shocking? Fourth fact is 5 lakh single-use plastic straws are used every single day. And the fifth fact, when you go shopping, do you bring your own usable bag? No. Around the world, 4 trillion plastic bags are used every year. The sixth one is worldwide, we buy 1 million plastic bottles every minute, and only about 23% end up being recycled, and the rest goes into the ocean or in landfills. Single-use plastic take a long way to get recycled. They cannot be disposed of, so it goes directly into the ocean and landfill. प्लास्टिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल यूज प्लास्टिक, दूसरा मल्टीपल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब उस प्लास्टिक से होता है जिसका प्रयोग हम केवल एक बार करते हैं। इसका आसानी से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है और पर्यावरण प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान भी जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक का है, क्योंकि इसका रिसाइकल नहीं किया जा सकता है और जब इन प्लास्टिकों को जलाते हैं तो इनसे जहरीले रसायन निकलते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। पर्यावरण के साथ साथ यह मनुष्यों, जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक होते हैं। ये पर्यावरण में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। जब यह कचरा या प्लास्टिक जीव जंतु खा लेते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ये बीमारियां उनके लिए मृत्यु का कारण सिद्ध होती हैं और जब यही प्लास्टिक नदियों, नहरों में जाकर मिल जाता है तो यह जल को दूषित कर देता है और जलीय जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग फेंक देते हैं वो वर्षा के जल को ज़मीन के भीतर जाने से रोकता है, जिससे ज़मीन के भीतर पानी के लेवल में कमी आ जाती है। जिस प्रकार लगातार हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 तक लगभग 14 अरब टन प्लास्टिक कचरा जो है इस दुनिया में जमा हो जाएगा। यह बहुत गंभीर बात है और यह सोचनी भी है कि हमारे पर्यावरण पर कितना अधिक प्रभाव डाल सकती है। पर्यावरण के साथ साथ यह मनुष्यों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर भी घातक प्रभाव डालती है। Have you ever heard about multi-use plastic? Let me tell you something about it. Multi-use plastic are an integral part of many supply chain. Whether it's the plastic crate that is present at a local supermarket or the specially designed plastic stillages used to deliver new car parts from all over Europe to UK factories. The multi-use plastic packaging products can be produced from recycled plastic, and after their really long working life, they can be recycled again. The material can be reused to produce another product. The best example of multi-use plastic is PVC. PVC basically stands for polyvinyl chloride and is the most widely used plastic all over the world. It manufactures wires, cables, automobiles, children toys, etc. It is the world's third most widely used synthetic plastic polymer. एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पैकेजिंग के हानिकारक प्रभावों को और फूस की लकड़ी की लगातार बढ़ती कीमतों के बारे में जागरूकता के साथ अधिक से अधिक व्यवसाय टिकाऊ पैकेजिंग समाधान की तलाश में है। जब ब्लू प्लेनेट 2 पिछले वर्ष प्रसारित हुआ तो ब्रिटेन के मीडिया का ध्यान प्लास्टिक पैकेजिंग की ओर गया। स्पष्ट है कि जब प्लास्टिक पैकेजिंग की बात आती है तो हम सभी जिम्मेदार होने की जरूरत है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रति अपने जुनून को कम करके और बहु उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के अपने स्तर को बढ़ाकर। इस अभियान की शुरुआत हमारे कई सुपर मार्केटों से इस तरह से सवाल पूछने के साथ हुई है। बहु उपयोग प्लास्टिक पहले से ही कई आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग है।
चाहे वह प्लास्टिक का टोकरा हो जिसे सेब अपने स्थानीय सुपरमार्केट में प्रस्तुत किया जाता है, या विशेष रूप से डिजाइन किया गया प्लास्टिक के चित्र। धन्यवाद। Here are some disadvantages of plastics which harms our environment. Number 1 is plastic creates problems while in the process of recycle. Number 2 is plastic takes 500 to 1000 years to decompose. Number 3, plastic does not degrade easily. Number 4, many animals by mistake consume plastic which harms their health. Number 5, it releases lots of poisonous forms into the atmosphere, causing air pollution in the process. Number 6, the burning process of synthetic material is quite slow. जय हिंद। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण को काफी तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक पदार्थों से उत्पन्न कचरे का निस्तारण काफी कठिन होता है और पृथ्वी पर प्रदूषण में भी इसका काफी अहम योगदान है, जिससे यह एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। प्लास्टिक बैगों, बर्तनों और फर्नीचर के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से प्लास्टिक के कचरे में काफी वृद्धि हुई है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण जैसी भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। यह वह समय है जब हमें इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इसके समाधान के लिए प्रयास शुरू कर देने चाहिए। प्लास्टिक प्रदूषण प्लास्टिक के कचरे से उत्पन्न होता है। आज के समय में यह एक विकराल रूप धारण कर चुका है और दिन प्रतिदिन यह बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि प्लास्टिक मूल रूप से नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन प्लास्टिक के थैले अनेक हानिकारक रंगों, रंजक और अन्य तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जो अत्यधिक नुकसानदेह है। सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज हम जीवित प्राणियों यानी मनुष्यों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। हमें पॉलीथीन यानी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। पॉलीथीन का बढ़ता हुआ उपयोग न केवल वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी खतरनाक होता जा रहा है। पॉलीथीन पूरे देश की गंभीर समस्या है। पहले जब हम खरीदारी करने जाते थे तो कपड़े का थैला लेके जाते थे, लेकिन आज हम खाली हाथ जाकर दुकानदार से पॉलीथीन में सामान लेकर घर चले आते हैं। पहले अखबार या फिर कागज के लिफाफे होते थे, किंतु उसके स्थान पर आज पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है। याद रहे कि पृथ्वी तल पर जमा पॉलीथीन जमीन का जल सोखने की क्षमता कम कर रहा है। इससे भूजल यानी पानी का स्तर गिर रहा है। सुविधा के लिए बनाई गई पॉलीथीन आज सबसे बड़ी असुविधा का कारण बन गई है। प्राकृतिक तरीके से नष्ट न होने के कारण यह धरती की उर्वरक क्षमता को धीरे धीरे समाप्त कर रही है। हम लोग अक्सर प्लास्टिक के डिस्पोजल में गर्म चीज़ों को खाते पीते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि इस तरह के डिस्पोजल ग्लास में रासायनिक पदार्थ मिला होता है क्लोरोफ्लोरोफॉर्म, जो हमारे शरीर में बहुत ही नुकसानदायक होता है। प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास के ऊपर एक मोम की लेयर बनी होती है, जिसमें हम गर्म चीज़ों को डालकर पीते हैं। जैसे चाय को उस कप में डालकर पिएंगे तो वो हमारे जो मोम की परत है उसमें मिलकर हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इस प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लासों से हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे डायरिया जैसी अन्य बीमारियां हमें बहुत ही ग्रसित करती हैं। We are surrounded by plastics. Much of our furniture, clothing, materials and food packaging are made up of plastics. Over the past decades, material used in manufacturing such as cotton, glass and paper are replaced by plastic. Use of plastic has led to the extreme plastic pollution in our environment. Eat, drink and breathe microplastics every day. These small plastic particles, once they have entered our bodies, plastic products contains several chemicals. These chemicals with serious health issues. Animals can starve when they ingest too much plastic that they cannot digest. Animal ingest plastic, it can block their digestive system. ये विश्वास करना मुश्किल है,
कि जिस प्लास्टिक का आविष्कार दशकों पहले हमारी सुविधा के लिए हुआ था, वो आज हमारे पर्यावरण के लिए एक मुसीबत बन चुका है। आज प्लास्टिक कचरा भारत के सामने आने वाली पर्यावरणिक चुनौतियों में से एक है। मौजूदा हालात यह है कि भारत में हर साल 58 लाख टन कचरा जमा होता है, यानी रोज़ाना 9,502 प्लास्टिक। आज पहाड़ हो या खाली मैदान, समुद्र हो या नदियाँ, हर जगह प्लास्टिक कचरे ने हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। हम सब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के 3 सिद्धांतों से परिचित हैं। ये सिद्धांत हमारे पर्यावरण को बचाने में फ़ायदेमंद हो सकते हैं। पहला सिद्धांत रिड्यूस मतलब कम करना। हम थोक में सामान खरीद कर भी प्लास्टिक को कम कर सकते हैं। जैसे महीने में 2 शैम्पू की बोतल खरीदने या रोज़ शैशे खरीदने से बेहतर है कि हम एक बड़ी बोतल खरीदें। पॉली बैग का इस्तेमाल ना करें, उसके बजाय कपड़े या जूट के बने झोलों का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक कप, प्लेट, स्पून्स और फोक का इस्तेमाल कम से कम करें। ये प्लास्टिक हमारे पर्यावरण में रहकर हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। हमारा दूसरा सिद्धांत है रीयूज मतलब पुनः प्रयोग करें। हम बबल रैप और कार्डबोर्ड का प्रयोग दोबारा कर सकते हैं। हम प्लास्टिक बोतलों को 2 या 3 बार रीयूज़ कर सकते हैं। हम जार और बर्तनों को छोटे कंटेनर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अंतिम और तीसरा सिद्धांत है रिसाइकिल। रिसाइकिल हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करता है और ऊर्जा भी बचाता है। हम अपने घर के कूड़े को 2 रूप में बांट सकते हैं, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। गीला कूड़ा मतलब बागीचे का कूड़ा या घर के किचन का हम कंपोस्ट बना सकते हैं, और सूखा कूड़ा जैसे कि प्लास्टिक, इन्हें हम छोटे छोटे कणों में तोड़कर नई चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। कूड़े को रिसाइकिल करने से ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी आएगी और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषण से मुक्त होगा। आज ज़रूरत है कि हम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के सिद्धांतों का पालन करें, और ये ऐसा करके हम अपने प्लास्टिक के प्रतिबंध में या प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। People produce huge quantity of trash every day. Accordingly, in a year, 2 million tons of trash piles up the landfills. So, there is a huge need of protecting our land, air, and water from pollution. This can be done by following few ways of conservation, which include 3 R's, that is, reduce, reuse, and recycle. The first R, that is reduce, is all about how we manage our waste and how can we reduce the waste that we produce. It can be done by buying the items in bulk and by buying only the items that we actually need, and we look after the items which can be reusable. The second R stands for reuse. It is actually all about that how can we use the items again and again repeatedly without replacing them. Like if we take the example of this pen, we use it in our daily life, and if it gets empty we used to refill it. Same goes for the water bottles. Now if a water bottle gets empty, we should refill it from our home water only before buying a new one from the market. If our computer gets old, we need to update it before replacing them. Now, coming to the third R, that is recycling. Recycling is all about waste management, how we are separating the items on the basis of their reusability. Now, if we take example of cardboards, aluminium cans and lead batteries, these are the items that can be recycled and can be used again and again in a new form. So, there is a huge need of separating the items and identifying the items which can be recycled. Sometimes we also include 2 more R's in our 3R scenarios, which include rethink and recreate. Now we have to rethink upon the actions which we take and how they are affecting the environment and how we are able to recreate the environment in a better way. प्लास्टिक को दोबारा से प्रयोग में कैसे लाया जाए। आप सभी ने मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मिशन मंगल ज़रूर देखी होगी। हमारे वैज्ञानिकों ने किस प्रकार समुद्री कचरे को, जिसमें कि प्लास्टिक मौजूद है, उसे कैसे प्रयोग में लाया, मंगलयान को बनाया और सफलता हासिल की। रहे स्वास्थ्य निरोगी काया, न बीमारी का हो रोपण। इसके लिए करना होगा सिंगल यूज प्लास्टिक का विलोपन। ये है बदलाव। पहला,
चॉकलेट और आइसक्रीम में प्लास्टिक की नहीं बल्कि बांस की बनी लकड़ियाँ इस्तेमाल होंगी। दूसरा, प्लास्टिक और थर्माकोल के कप, प्लेट, ग्लास आदि बैन होंगे। इसकी जगह कागज़, लकड़ी, बांस की चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तीसरा, प्लास्टिक के ट्रे की जगह अरेबिक और सेरेमिक प्लेट इस्तेमाल होगी। चौथा, सिगरेट के डब्बों पे लगी पॉलीथीन बैन होगी। इसकी जगह रिसाइकल पेपर इस्तेमाल होगा। पांचवा, मिठाई के डब्बों पे लगी पॉलीथीन बैन होंगी। इसकी जगह जूट या कपड़े के थैले इस्तेमाल होंगे। Alternative of plastic. Plastic is one of the major causes of environmental pollution in the world, including India. To minimize the damage caused by the increased use of plastic, the government of India began taking control measures by banning plastic in our country. Besides ban on a plastic, it is really important to explore the alternative to replace plastic in our daily life. Let us look for example of plastic to replace the plastic in our daily life. First is bioplastic. Bioplastic are biodegradable products and they are manufactured by renewable sources. Bioplastic products helps to reduce the environmental pollution and help to retain the sustainability. Bioplastic products have a similar property to conventional products, so it can be a best way to replace plastic in our daily life. Second is sugarcane bagasse. Bagasse is a residue after crushing the sugar cane, so it is compostable, eco-friendly and sustainable. Therefore, we can use it in the packing of food and food containers, and we can also use to make disposable glass, cup and etc. It is a cost effective and it is a available alternative of plastic. Third is bamboo products. Bamboo has a natural antibacterial property. Look, some of the few examples of bamboo are toothbrush, table worm like knife, spoon, chopsticks, straw and etc. If we have a great choice of choosing these items, where hygiene is a very main important topic in our world. जय हिंद एवरीवन। कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। हम सभी किसी भी नए कार्य को करने से पूर्व हमेशा यह कहते हैं कि आज नहीं कल से शुरू करेंगे, कल नहीं परसों से शुरू करेंगे। इसी प्रकार एक बात यह भी है कि वर्तमान समय में हमारे और प्रकृति दोनों के लिए ही पॉलीथीन का उपयोग हानिकारक है। फिर भी हम अधिक से अधिक मात्रा में पॉलीथीन का प्रयोग करते जा रहे हैं। एनसीसी कैडेट होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम लोगों को पॉलीथीन से होने वाले दुष्प्रभावों से जागरूक कर सके। तो लोगों को जागरूक करने से पूर्व हम इसकी शुरुआत अपने ही घर से कर सकते हैं। हम पॉलीथीन की जगह कपड़े के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब जागरूकता की बात आती है तो हमारे मन में सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को किस प्रकार जागरूक बना सकते हैं। तो वर्तमान समय में इसका उत्तर यह है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बना सकते हैं। शिक्षित होने का सबूत दे, पॉलीथीन का प्रयोग न करें, न करने दें। धन्यवाद। पर्यावरण को प्लास्टिक के प्रकोप से बचाएं। इसे हम कई तरह से कर सकते हैं। जैसे पहला, प्लास्टिक के बने हुए टूथब्रश का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह बैम्बू से बने हुए टूथब्रश का ही इस्तेमाल करें। इससे हमारे पर्यावरण को कम हानि पहुंचेगी। दूसरा, हम कैडेट्स मिलकर नदी किनारे, तालाब तथा पानी स्थल वाली जगहों को साफ करने में योगदान दे सकते हैं, जिससे कि वहाँ के जीव जंतुओं को राहत मिलेगी। तीसरा,
हम अपने आसपास के लोगों को जागरूक कराएं, उन्हें प्लास्टिक के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएं, जिससे कि वह कम से कम प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल का यूज़ करें। कैडेट होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर तथा आसपास में कूड़ेदान का उचित प्रबंध कराएं और यह सुनिश्चित करें कि कूड़ा कूड़ेदान में ही जाए, जिससे कि प्लास्टिक की पन्नियाँ, प्लास्टिक की बॉटल रोडों पे एकत्रित ना मिलें, वह कूड़ेदान में ही रहें, जिससे उन्हें डिकम्पोज के लिए प्रॉपर ले जाया जा सके। आखिरी एवं सबसे मुख्य बात, हम कैडेट्स लोगों को जागरूक करें, उन्हें अवेयर करें और उन्हें समझाएं कि बचे हुए खाने को पन्नी में बांधकर ना फेंकें, बचे हुए खाने को पशु पक्षी को खिलाएं या फिर एक साफ़ सुथरी जगह पर डालें, जिससे कि पशु पक्षी उसे आकर खा लें, परंतु उसे पन्नी में बांधकर ना फेंकें। पन्नी में बंधा हुआ खाना पशु पक्षी उसे पन्नी सहित ही निगल जाते हैं, जिससे कि वह खाना उनके पेट में, पन्नी सहित खाना उनके पेट में एकत्रित होता रहता है और जिससे कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। हम कैडेट से सुनिश्चित करें कि हमारे सामने या फिर हमारे पीठ पीछे। आखिरी एवं सबसे मुख्य बात, हम कैडेट्स लोगों को जागरूक करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि पन्नी में पैक किया हुआ खाना ना फेंकें। सबसे आखिरी एवं मुख्य बात, हम कैडेट्स लोगों को जागरूक करें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं कि बचा हुआ खाना पन्नी में बांधकर ना फेंकें, बचे हुए खाने को पशु पक्षी को दें या उसे एक साफ़ सुथरी जगह पर रखें, जिससे कि पशु उसे आके खा सके। पन्नी में बचे हुए खाने को फेंकने से वह पशु उसे पन्नी सहित ही निगल जाता है, जिससे कि उसके पेट में वह पन्नियाँ एकत्रित होती रहती हैं और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हम कैडेट्स ऐसा करने से लोगों को रोकें, उन्हें शिक्षित करें कि यह पन्नी हमारे जानवरों के लिए हानिकारक है। आखिरी में मैं यह कहना चाहूँगी, पर्यावरण को बचाने के लिए, उसे हरा भरा बनाने के लिए हम सभी कैडेट्स की यह जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखें। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, हमारा पालनहार है। यदि हम इसके लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकते तो कम से कम इसे बर्बाद तो नहीं करना चाहिए। अपने पर्यावरण और इसमें रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा हेतु हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी एकल उपयोग प्लास्टिक का पूर्णतः विलोपन कर देना चाहिए, ताकि हम और हमारे पर्यावरणीय मित्र एक खुशहाल पर्यावरण में सांस ले सकें। हमारी सरकार ने भी अपने देश को सन 2022 तक प्लास्टिक मुक्त देश बनाने का लक्ष्य तय किया है, तो हम सभी को मिलकर सरकार की इस पहल में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का अगर हो जाए विलोपन, स्वच्छता और खुशहाली से फले फूले जनजीवन। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, नवयुग कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य, आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि सरकार ने जो 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया है, उसमें अपना सहयोग करें और पर्यावरण को किस प्रकार से हम स्वच्छ रख सकते हैं, इसमें अपना योगदान दें। क्योंकि हमें पता है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे कि पेप्सिको, अमूल, ये सब सिंगल यूज़ प्लास्टिक अपने टेट्रा पैक्स के साथ लगा कर देती हैं और वो 10-20 रुपए में मिलने वाले आपके जो उत्पाद हैं वो कितना पोल्यूशन समाज में करते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम पहाड़ों पर, पर्यटन स्थलों पर देखें तो वहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कचरा ढेरों ढेर इकट्ठा हो जाता है। तो इस सब से निजात पाने के लिए हम सभी को ये सहयोग करना होगा कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग एकदम ना करें और लोगों को भी प्रेरित करें। बहुत सारे हमारे जो संगठन हैं, जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे युवा हैं, अगर हम सभी संकल्पित हो लें कि हम जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका प्रयोग नहीं करेंगे
और अगर कोई कर रहा है तो उसको टोकेंगे। समस्या ये होती है कि हम किसी को अगर कोई गलत कर रहा होता है समाज में तो हम उसे टोकना नहीं चाहते हैं, पर अगर हम टोकेंगे नहीं तो वो अपने आप को भी उसको हानि पहुंचा रहा है, साथ में आपको भी उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। साथ ही साथ जो हमारा पूरा देश है, पूरा पर्यावरण है, इसी तरीके से अगर हम समग्र रूप में देखें तो पूरे विश्व पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। अगर हम खाली स्ट्रॉ की ही बात करें तो पेपर स्ट्रॉज भी आते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अगर थोड़ा बहुत कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है तो उसको उनको बियर करना चाहिए एज अ इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सभी जो बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर के हों, चाहे फैमिली में हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया कि उसको बैन करने की बात की, पर हमेशा ही बैन होता है और फिर से प्रयोग होता रहता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम सरकार का सहयोग करें और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एकदम प्रतिबंधित करें, और जिन चीज़ों से रिप्लेस किया जा सकता है उसको विकल्प के रूप में तलाशें, और विकल्प मौजूद भी हैं, उन विकल्पों को हमें लेकर चलना है, उन्हीं का प्रयोग करना है। और इसी के साथ हम स्वच्छ वातावरण में रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो हमारी माता है, और उस जय हिंद। हम सभी 19 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी उत्तर प्रदेश निदेशालय के नवयुग कन्या महाविद्यालय के एनसीसी विंग की तरफ से आप सभी से आज ये इस वीडियो के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक, यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना कहें। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ने देखा कि ये युवा कैडेट्स ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे पर्यावरण को और प्राणी मात्र को किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही साथ ये बात भी बताने के प्रयास किया गया कि हम प्लास्टिक के स्थान पर उसका ऑल्टरनेट या विकल्प के रूप में किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई प्लास्टिक ऐसा है जो सिंगल यूज़ नहीं है। अगर मल्टीपल यूज़ प्लास्टिक है तो उसका हम इस्तेमाल किस रूप में कर सकते हैं, यानी वेस्ट को मैनेज किस प्रकार से करना है, इसी भी बताने की कोशिश की गई। साथ ही साथ 3R प्रिंसिपल यानी रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, इसको भी बताने का खूबसूरती से प्रयास किया गया। विस्तृत जानकारी इसकी इसमें दी गई है। हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग जो है वो केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए हानिकारक है। ये ग्रीन हाउस गैसों को भी प्रभावित कर रहा है, और बहुत सुविधाजनक मानकर हमने इसका प्रयोग आरंभ किया, लेकिन जब वही चीज़ हमारे लिए एक संकट बनकर आ गई है तो हमें उसे छोड़ देना बेहतर होगा। इस बात को हमें समझना होगा। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन तब तक वो पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकते जब तक हम सब स्वयं आगे बढ़ कर के उसका पालन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है इस समाज में, इस समाज को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है कि सब मिलकर के जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम समाज से किसी भी प्रकार की बुराई को भी दूर नहीं कर सकते। और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ख़ास तौर से, विशेष तौर से विशेष आयोजन और भी किए जा रहे हैं, क्योंकि जब आज़ादी का 100वां वर्ष हो तो उस समय हमारा देश इतना शक्तिशाली और स्वस्थ हो कि पूरी दुनिया में हर कोई उसको एक उदाहरण के रूप में ले। इसलिए आप सभी से एक बार फिर से ये अपील है कि से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक, कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। जो प्लास्टिक हमारे आसपास आ चुका है उसका किस तरह से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, हमें इस पर ध्यान देना है। यानी वेस्ट को हम कैसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ हम प्लास्टिक के स्थान पर जो हमारे पास बेहतर विकल्प हैं, और घर में ही पड़े बहुत सारे ऐसे वेस्ट चीज़ें हैं जिससे हम बहुत अच्छी चीज़ें अपने इस्तेमाल की भी बना सकते हैं, जिसमें हम अपने डेली यूज़ के सामान को लाने का भी काम कर सकते हैं। तो आप सभी से ये अपील है कि हम सभी को इस कर्तव्य को निभाना होगा, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा, तभी एक स्वस्थ
और सशक्त समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।